Students, today we are going to discuss about relative configuration, that is DL designation. This is called relative configuration because all the configuration designated with respect to glyceraldehyde. This is glyceraldehyde. This is the structure of glyceraldehyde. Aldehydic group, CHO, CHOH, secondary alcohol, and CH2OH. This is glyceraldehyde, and D-glyceraldehyde has configuration this where OH is on the right side, and L-glyceraldehyde has OH on the left side. So designation DL is given to the molecule depending upon when the OH is on the right side, then that will be D, because in this D-glyceraldehyde OH is on the right side. So whatever the compound is there, chiral carbon of course, then with chiral carbon, if OH group is on the right side, then that is designated relative configuration capital D, and when OH is on the left side, then it will be designated relative configuration capital L. So one shouldn't be confused this with small d and small l. These small d and small l will give you idea about the optical rotation in polarimeter. That is how much the plane polarized light is rotated, either left, then small l, right, then small d. So this is about information about the optical rotation. This data you will get from polarimeter. So it is entirely different from the capital D and capital L. This will give you idea about relative configuration relative to glyceraldehyde. That means if it is D, then you can assume that when OH group is attached with the chiral center, that OH is on the right side, and if the relative configuration is capital L, then you can understand that the OH group attached to the chiral center is on the left hand side. So this is relative configuration, and this is given with respect to glyceraldehyde. And whenever you are giving the designation, you have to write the formula in Fischer projection. So I have written the Fischer projection of D-glyceraldehyde, chiral center at the center position, OH on the right side. This is Fischer projection of L-glyceraldehyde, which is on the left hand side. Okay, so there are certain rules that will be followed before giving the designation capital D and capital L. The first thing that you have to do, you have to write the Fischer projection formula with longest chain will be the vertical line. Here this vertical line will be the longest chain of the Fischer projection. That way we will be writing the formula so that the longest chain will be the vertical line and rest other group will be designated or represented in this horizontal lines, but the longest one will be the vertical line. Then the next one is most oxidized group. Like in here, aldehyde is the most oxidized group, so that will be on the top. If there is a group aldehyde or acid, these are the oxidized group, that will be on the top. And suppose it has a ketonic group, that can't be a terminal group, so that will be at the top possible position, that means second position. Like this, you can see the groups acid, aldehyde are at the top, and when the group is ketone, then that will be at the second position. So top possible position you have to give. And if there are several chiral centers available in any compound, then in that case bottommost carbon is considered for this designation of D and L. बहुत सारे हैं, पहले तो आपको करना होगा कि फिशर प्रोजेक्शन आप लिखेंगे, सबका फिशर प्रोजेक्शन लिखेंगे, उसमें जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो वर्टिकल लाइन रहेगा. देखिए यहाँ जो लॉन्गेस्ट चेन है वो वर्टिकल लाइन है, और बाकी सारे सब स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन से आप रिप्रेजेंट करेंगे.
उसके बाद जो सबसे ऑक्सीडाइज ग्रुप होगा, यहाँ पे जितने सारे सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है एंड एल्डिहाइड है, सबसे ऑक्सीडाइज ग्रुप जो है वो टॉप पोजीशन पे रहेगा। अगर वो टर्मिनल नहीं है, दैट इन केस ऑफ दिस वन फ्रुक्टोज, तो वो टॉप पॉसिबल, यहाँ सेकेंड पोजीशन पे रखा है हमने, उस पोजीशन पे रखेंगे। और तो बहुत सारे कायरल सेंटर हैं, तो हम डी और एल डेजिग्नेशन के लिए जो सबसे बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है, यहाँ पे कितने कायरल सेंटर है, 1 2 3 4 कायरल सेंटर्स आते हैं। सो द बॉटम मोस्ट, ये बॉटम मोस्ट है, इसे हम यूज़ करेंगे डेजिग्नेशन देने के लिए डी एल एल, क्योंकि यहाँ ओ एच राइट हैंड साइड में है, तो ये हमारा डी ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और यहाँ ओ एच राइट साइड में है, तो ये डी ग्लूकोज है। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसको भी हमने वही रूल फॉलो किया है, लॉन्गेस्ट चेन जो है हमारा वो वर्टिकल लाइन है। ऑक्सीडाइज ग्रुप, टॉप पोजिशन पॉसिबल, बहुत सारे कायरल सेंटर्स हैं, देयर आर 3 कायरल सेंटर्स ओवर हियर। तो जो सबसे बॉटम मोस्ट है ये है, वहाँ पे ओ एच देखेंगे, सबसे पहले बॉटम मोस्ट कार्बन लोकेट करेंगे, दिस इज द बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर। देन यहाँ पे ओ एच, वी लुक फॉर द ओ एच पोजिशन, ओ एच ऑन द राइट साइड, तो दिस इज डी फ्रुक्टोज। दिस डेजिग्नेशन इज यूज फॉर ओ एच एज वेल एज NH2 ग्रुप। इसलिए ये रिलेटिव कन्फिग्रेशन जो है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड्स के कन्फिग्रेशन डेजिग्नेट करने के में अभी भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज ये आप रिलेटिव कन्फिग्रेशन देते हैं दो ही ग्रुप के केस में, जब OH और NH2 हो, और OH और NH2 अगर राइट हैंड साइड में है तो वो कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड और एनी कंपाउंड, दैट विल बी D। और अगर OH या NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो L, एंड दिस हैज़ टू बी कैपिटल D एंड कैपिटल L। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, स्मॉल d और स्मॉल का बिल्कुल डिफरेंस है, ये देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू। और आप अगर इसकी जगह पे स्मॉल d लिखते हैं तो दैट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग। यहाँ आपको कैपिटल D ही लिखना है, कैपिटल L ही लिखना है। सो नाउ वी विल डिस्कस विद द compounds with NH2 group. Here NH2 group, this is serine molecule, this NH2 group is on the left hand side, so this is L serine। और इसी दूसरा ये भी serine molecule है, यहाँ पे NH2 जो है वो राइट हैंड साइड में है, इसीलिए ये D serine हो गया। तो सेम डेजिग्नेशन जैसे OH के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही NH2 के लिए भी यूज़ होगा, लेफ्ट हैंड साइड देन L एंड राइट हैंड साइड देन D। बहुत सिंपल है ये डेजिग्नेट करना, सिर्फ आपको यही करना होगा कि यू हैव टू राइट द फिशर प्रोजेक्शन फर्स्ट, द लॉन्गेस्ट चेन एट द विल बी द वर्टिकल लाइन, एंड देन and so that you will be written writing this way that the oxidized group will be at the top position, and then look for the various chiral centers। बहुत सारे अगर हैं chiral centers तो सबसे बॉटम मोस्ट देखेंगे, अगर एक ही है तो उसी में देखेंगे कि लेफ्ट है या राइट है। आपका NH2 है या OH ग्रुप है, लेफ्ट है तो L, लेफ्ट है तो L, राइट है तो D। ये एक ही कायरल सेंटर था, यहाँ बहुत सारे कायरल सेंटर जैसा हमने डिस्कस किया, तो आपको वही लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो करना है। ऑक्सीडाइज ग्रुप विल बी एट द टॉप, सारे बहुत सारे हैं उसको आप मार्क करेंगे, और सबसे बॉटम मोस्ट जो होगा उसको चूज़ करेंगे डेजिग्नेट करने के लिए। हमें इन सारे ग्रुप की OH की क्या पोजीशन है उससे नहीं है, तो कोई भी उससे डिफरेंस नहीं आएगा डेजिग्नेशन में, हमें सिर्फ ये देखना है। और ये डी ग्लूकोज जब हम कहते हैं तो सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन भी यही मिलता है कि जो बॉटम मोस्ट OH ग्रुप है दैट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड और इट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इफ इट इज़ L। तो इस तरह आप DL डेजिग्नेशन दे सकते हैं। सपोज यहाँ हमने जब बताया है आपको सारे, तो उसमें जो ऑक्सीडाइज पोजीशन थी वो टॉप पे थी। सपोज इफ एनी फिशर प्रोजेक्शन इज गिवन टू यू, इन दैट केस ऑक्सीडाइज ग्रुप, द मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप इज नॉट एट द टॉप पोजीशन, जैसे कि यहाँ है, ठीक है। CHO ग्रुप जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स हैं सबसे ऑक्सीडाइज है एल्डिहाइड, ये यहाँ पे बॉटम मोस्ट पोजीशन पे। तो यू हैव टू डू रोटेशन सो दैट दिस विल गो एट द टॉप पोजीशन। तो आप 180 से रोटेट करेंगे सो दैट इट विल गो एट द टॉप पोजीशन। तो जब आप 180 से इसे रोटेट करेंगे तो H और OH की पोजीशन भी चेंज होगी। ये अगर ऊपर जाएगा तो ये H जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट चला जाएगा, एंड ये भी जो OH राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। और ये अभी जो सेकंड पोजीशन पे है ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा और ये कायरल सेंटर सेकंड पोजीशन में आ जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये हम बिल्कुल 180 रोटेशन कर रहे हैं।
आफ्टर 180 रोटेशन CHO ऊपर आ गया, H लेफ्ट हैंड साइड में चला गया एंड दिस हैज़ बिकम फर्स्ट कायरल सेंटर एंड नेक्स्ट जो है ये OH भी राइट से लेफ्ट में चला गया है एंड आफ्टर दैट दिस CH2 ग्रुप। अब हमें देखना है जब ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप मोस्ट पोजिशन पे होगा, नाउ वी विल लुक एट द वेरियस कायरल सेंटर्स अवेलेबल। 2 कायरल सेंटर्स है, बॉटम मोस्ट, देन वी विल सेलेक्ट दिस इज द बॉटम मोस्ट वन, ये सबसे बॉटम मोस्ट है। यहाँ पे OH की पोजीशन देखेंगे तो OH इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज L, 3 मॉलिक्यूल है, दिस इज L3। तो आपको ये जरूर देखना है वट एवर कंपाउंड इज गिवन टू यू कि जो कंडीशन है वो सारी सेटिस्फाइड है कि नहीं, लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो हुआ है कि नहीं, एंड मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप इज ऑन द टॉप और नॉट। देन दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी इन दिस केस ऑल्सो COH ग्रुप, यहाँ पे इसको टॉप पोजीशन पे होना चाहिए था, ये नहीं है टॉप पोजीशन पे, तो अब हमें इसमें भी रोटेशन करने होंगे। तो यहाँ पे हम COH ग्रुप को एक्सचेंज करेंगे और एट अ टाइम आपको 2 ग्रुप एक्सचेंज करेंगे, तब कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, इसलिए हम एक सिर्फ नहीं कर सकते, हमको अगर चेंज करना होगा, एक्सचेंज करना है ग्रुप, देन वी हैव टू डू 2 एक्सचेंज एट अ टाइम। सो फर्स्ट वी विल डू द एक्सचेंज ऑफ H एंड COH, COH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, COH ऊपर चला गया, H आ गया है नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब हम सेकंड ऑपरेशन करेंगे, OH और H का एक्सचेंज करेंगे। सेकंड ऑपरेशन हम यही कर सकते हैं, फिर हम COH से नहीं एक्सचेंज कर सकते क्योंकि हमें COH की पोजीशन टॉप पे रखनी है एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। इन दोनों में एक्सचेंज करेंगे। नाउ द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कायरल सेंटर इज OH ऑन द राइट हैंड साइड एंड H ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो इथाइल ग्रुप है CH2 CH3 ग्रुप दैट इज एट द हॉरिजॉन्टल सेंटर, तब वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन रूल जो है आपका, लॉन्गेस्ट चेन should be the vertical line should be the longest chain, वो नहीं पॉसिबल हो रही है यहाँ पे, इसीलिए ये इसको आप लाएंगे यहाँ पे बॉटम मोस्ट पोजीशन पे, तभी वो आपका जो लॉन्गेस्ट चेन should be the vertical line, that rule will be satisfied, so this has to come over here। तो आप इसे एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। पहले हमने इन दोनों को एक्सचेंज किया, we have exchanged OH and CH3 and then we have exchanged this पहले COH OH, तो OH आ गया है आपका राइट से लेफ्ट में, लेफ्ट, एंड देन हमने H और इथाइल ग्रुप को एक्सचेंज किया है, देन H एंड इथाइल ग्रुप। नाउ फाइनली ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन आया है आफ्टर कंप्लीट एक्सचेंज एंड एट दिस टाइम इट सेटिस्फाई ऑल द रूल्स। लॉन्गेस्ट चेन इज द वर्टिकल लाइन, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप एट द टॉप। नाउ वी विल लुक फॉर द कायरल सेंटर्स। 2 कायरल सेंटर हैं यहाँ, दिस इज द bottom most OH is on the left hand side, so this is designation given L। so अगर कोई भी कंपाउंड दिया हो, अगर आप पहले आप देखेंगे कि सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, अगर रूल्स फॉलो नहीं करने, आप टू मेक द चेंजेस एंड एक्सचेंज द ग्रुप सो दैट ऑल द रूल्स इज सेटिस्फाइड, आफ्टर दैट यू विल गिव द डेजिग्नेशन। बहुत आसान है देखना, सिर्फ हमें OH की पोजीशन ही देखनी है, लेकिन उससे पहले ये जरूर देख लेना है कि जो बाकी सारे रूल्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ suppose if the configuration is given in this one wedge dash, not in the Fisher projection, आप इसमें भी कर सकते हैं, but if you don't have a practice then you can convert, first you have to convert this to Fisher projection, और उसमें Fisher projection के बाद तो जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया है पहले, वो देख के आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। तो पहले हम जानेंगे कि how you will convert this to Fisher projection, ठीक है, wedge and dash to Fisher projection। इसके लिए आपको करना है जो नॉर्मल लाइंस में लिखे हुए हैं, लाइक COH ग्रुप एंड CH2OH ग्रुप, दैट विल बी द वर्टिकल लाइन, आप उसे वर्टिकल लाइन बना लेंगे। देन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज अबव, दिस जो डैश है जिस भी डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। देखिए यहाँ पे H है पोजीशन, डैश पोजीशन पे, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ राइट है, वो यहाँ राइट ही रहा, और इस पोजीशन में जो वेज पोजीशन पे जो भी है दैट विल बी ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। तो अब ये अगर राइट हैंड साइड में चला गया तो एक ही पोजीशन बची है, तो ये क्या चला जाएगा, OH विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह लिखेंगे, जो नॉर्मल लाइन से लिखा रहेगा वो वर्टिकल हो जाएगा, जो वेज एंड डैश में होगा दैट विल गो ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइंस,
और जो डैश पोजीशन पे है वो जो आप व्यूअर आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल को, आपके हिसाब से जो भी है, अगर वो राइट में है तो वो राइट में ही रहेगा, और जो विच पोजीशन पे है वो उसके अपोजिट में चला जाएगा। तो ये OH आ गया लेफ्ट हैंड साइड में. अब लुक एट द मॉलिक्यूल, chiral center, OH is on the left, so this relative configuration will be capital L. अगर दो chiral center है, there are two chiral center in the molecule, CHO, यहाँ जो भी नॉर्मल लाइन में जो भी लिखा हुआ है वो सारे ही वर्टिकल लाइन में, तो नॉर्मल लाइन में है CHO and CH3, CHO and CH3. नाउ these are the horizontal lines. यहाँ पे H, जैसे हमने कहा था जो डैश पे है, that will the position will be same. This H is on the right hand side, H is on the right hand side here. So the next one is on the wedge is Br, Br will go on the left hand side. Now come to this carbon. Here dash one is H and H is on the now लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पे H राइट हैंड साइड में था तो राइट हैंड साइड में गया. यहाँ जो डैश पे जो भी ग्रुप होगा, यहाँ H है, कोई भी ग्रुप हो, दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन. तो अगर जो भी डायरेक्शन है, जैसे कि यहाँ डैश में H है तो H यहाँ पे लेफ्ट में है तो लेफ्ट में चला गया. अनदर ग्रुप OH विल गो ऑन द राइट हैंड साइड. अब फाइनल हमारा फिशर में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया है. तो अब आप देखेंगे chiral सेंटर दो हैं. बॉटम मोस्ट इज दिस वन which is on the right hand side, so designation will be D. Suppose this is the compound. Another example, यहाँ भी wedge dash formula दिया हुआ है आपका. In this case also COH group and H will be the vertical line. CH2OH and OH. OH the dash position, so OH this position is at the right hand side, so OH will be on the right hand side. And CH2OH will go on the left, that is only possibility, CH2 will go on the left side. यहाँ पे आ गया. यहाँ पे देखिए अगर CH2 यहाँ पे है, so it is not following the longest chain, the vertical line is not longest chain, so we have to exchange the group. The first हम इसे exchange करेंगे, CH2 will go come here and then H will go there. CH2OH आ गया है bottom most पे H, और फिर दूसरा exchange करेंगे हम OH and H का, and OH and H. अब now this is final, so all rules are satisfied here. So now we will look at the chiral center. The OH is on the left hand side, so this is. अगर आप यहीं पे बिना कन्वर्जन के अगर रूल नहीं फॉलो करेंगे और सीधे सिर्फ OH देख के डेजिग्नेट कर देंगे, तो आप इसे डेजिग्नेट करेंगे कैपिटल D, then it will be wrong. It is capital L. You have to look that all the rules are satisfied or not. That is the only thing you have to see. Otherwise, it is very easy, that you have to look at the group, is on left or on the right. Now, if the formula is given, suppose the formula or the compound structure is given to you in Newman projection here. This is Newman projection. I have already taught you how to convert Newman projection to Fisher projection in our previous lectures. If you haven't seen, you can go and watch that first. Here also I will give you some idea. Suppose this is Newman projection. In this projection, this is staggered conformation written. First, if you want to convert it to Fisher projection, you have to rotate it so that you will get the eclipsed one. So you rotate it by 60 degree. रोटेट करेंगे 60 डिग्री से रोटेट करेंगे. सो ईच ग्रुप विल बी रोटेटेड बाय 60 डिग्री. CH3 will eclipse with this one, H will eclipse with this one, and this OH will eclipse with this H, and you will get this eclipse formula. When we get this eclipse formula, after that you will write the Fisher projection. So Fisher projection will be CHO group on the top, CHO group on the top. Groups here, OH is on the left hand side, OH is on the left hand side, H on the right hand side, H is on the right hand side. This CH3 will go at the bottommost position, and the position of H and OH, here H left hand side, OH right hand side. So whatever position is there in the Newman, in eclipse it will remain same, and this topmost molecule will be, first one will be at the top, another one will be at the bottom. This will be the vertical line, and these two will be the at the horizontal lines.
So final Fisher projection we have got. Now we will look at the chiral centers. There are two chiral centers. This is the bottommost. Now we will look at the position of OH. It is on the right hand side. So the configuration is D. Now this is the another example. Here also staggered is given. We will again rotate it with 60 degree to get the eclipse one. Here I have got the eclipsed. This OH will be at the top. This OH will be at the bottom. And this is the front carbon. So this OH group, COH group will be, it is on the left hand side. So it is left hand side. H on the right. H on the right. This H is on the left hand side. H left hand side. This CH2OH on the right hand side. So this CH2OH on the right hand side. Now when you look at this compound, now see this COH group is the most oxidized group available over here. This is not at the टॉप पोजिशन. सबसे जो ऑक्सीडाइज ग्रुप है वो टॉप पोजीशन पे नहीं है यहाँ पे. सेकंड थिंग CH2OH को भी यहाँ होना चाहिए ताकि हमारा लॉन्गेस्ट चेंज जो हो वो वर्टिकल लाइन पे आए. सो वी हैव टू एक्सचेंज द ग्रुप. दोनों ही कार्बन पे हमें एक्सचेंज करने होंगे. फिर फर्स्ट वी विल एक्सचेंज, ऐसे एक्सचेंज करेंगे कि COH ग्रुप टॉप पे चला जाए, यहाँ CH2 बॉटम पे हो जाए. तो एट ए टाइम आप एक ग्रुप एक्सचेंज नहीं कर सकते, एट ए टाइम हम दो ग्रुप करेंगे ताकि कन्फिग्रेशन हमारा सेम ही है. COH से OH को एक्सचेंज किया हमने इस कार्बन पे, इस कार्बन पे CH2OH एंड OH को एक्सचेंज किया है हमने. देखिए ये कंपाउंड बना हमारा. COH आ गया यहाँ पे, ऊपर चला गया. OH यहाँ आ गया. CH2OH यहाँ आ गया एंड OH यहाँ चला गया. अब हम सेकेंड एक्सचेंज जो करेंगे ये OH और H के बीच में करेंगे यहाँ पे, और यहाँ भी H और OH के बीच में. अभी एक्सचेंज होने के बाद ये H यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ आएगा. H OH, दिस OH विल go on the left, H come on the right. So now final, this is the compound that is according to the rule, satisfying all the rules. Now we will look at the chiral centers. Two chiral centers. OH is on the left hand side at the bottommost chiral center. So this is L. यहाँ सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हमारी. अब हम कायरल सेंटर्स देखेंगे. बॉटम मोस्ट दो हैं, फिर बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर देखेंगे. बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हमारा इसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल L है. ठीक है. अगर कोई भी आपका यहाँ पे देखिए, ये हमने मैनोज का स्ट्रक्चर लिखा है. ठीक है. मैनोज के 4 कायरल सेंटर्स हैं और जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है उसमें OH राइट हैंड साइड में है, तो ये D मैनोज है. तो जब भी आपको इसका L मैनोज लिखना होगा तो यू हैव टू राइट द मिरर इमेजेस ऑफ दिस वन. क्योंकि ये कायरल है तो इसका जो मिरर इमेजेस होगा, मिरर इमेज है, दैट विल बी इनैंशियोमर ऑफ दिस वन. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसीलिए इनैंशियोमर्स हैं. देखिए एक दूसरे को आप सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है. इनैंशियोमर्स के बारे में भी आपको हमने कंप्लीट एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया है आपको. तो आई होप कि वो आपको कम्प्लीटली क्लियर होगा. तो ये दोनों इनैंशियोमर हैं. तो जब भी आप इसका D का L मैनोज लिखना चाहेंगे तो कंप्लीट मिरर इमेज लिखेंगे इसका, और कायरल है इसीलिए नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होगा ये. तो इसका जो इनैंशियोमर होगा वो होगा L मैनोज. ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ इस पोजीशन पे ही इसका चेंज कर दें, लाइक OH ऑन द लेफ्ट एंड H ऑन द राइट, एंड रेस्ट कन्फिग्रेशन विल बी सेम लाइक दिस कंपाउंड, सो दिस विल बी L मैनोज. नो, दिस इज नॉट L मैनोज. L मैनोज विल बी कंप्लीट मिरर इमेज ऑफ दिस वन. इसका जो है ना नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो होगा वो होगा L मैनोज. मिरर इमेज ऑफ दिस वन विल बी L मैनोज, नॉट द डिफरेंस एट दिस कार्बन ओनली, बट देयर विल बी डिफरेंस इन ऑल द कायरल सेंटर्स. ठीक है. सारे पे ही चेंजेस आएंगे और ये होगा L मैनोज, इसका मिरर इमेज. ना कि सिर्फ एक कार्बन पे आप इसका चेंज कर दें लाइक दिस वन. ये नहीं होगा, ये होगा. दिस विल गेट L मैनोज इन द D मैनोज. सपोज अगर कोई भी कंपाउंड है जिसमें कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगे हैं, यहाँ भी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, दिस OH, H, H एंड OH. इफ दिस काइंड ऑफ ग्रुप इज देयर दैट हैज गॉट अ सिमेट्री, जिसको कि अगर आप रोटेट करें या दोनों तरफ से भी नंबरिंग करें तो सेम ही होगा. सपोज अगर हम इसके यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यू विल गेट द सेम कंपाउंड. लाइक अगर नॉर्मली हम अगर नंबरिंग करें तो इट्स ग्रीन 1 2 3 4 दिस कंपाउंड. ठीक है. यहाँ से भी सारे ही रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं. दिस कंपाउंड इज OH इज ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज D. इफ आई रोटेट इट बाय 180 डिग्री, ये ऊपर चला गया. अब ये जो ऑरेंज नंबरिंग थी अब वो है 1 2 3 4. अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने रोटेट किया तो OH जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में चले गए यहाँ पे. दैट मीन्स ये अब हो गया L.
तो अब इसी कंपाउंड को हमारा डी भी आ रहा है, एल भी आ रहा है. सो दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स यू कांट यूज डीएल सिस्टम टू गिव द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. ऐसे कंपाउंड्स में आप डीएल कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे सकते. सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. I hope you have understood it. If you have any question, you can ask me in the comment section.